गुरु। हरे राम। हरे कृष्ण। वाहेगुरु। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। You know, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Waheguru. These words are code words. तेरा नाम इतना है मुख्तसर, तेरा जिक्र इतना तवील है. It's a code word. When I say Ram, it's a code word. It's an expression of absolute fulfillment. That मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया, मैंने जो कुछ भी चाहा मिल गया. That state of mind, when it has to put this feeling in words, it's called Hey Ram, Hey Ram, Vaheguru, Allahu Akbar. Allahu Akbar means beyond Allah कुछ भी नहीं है, वो ही सब कुछ है, वो मिल गया मुझे. अल्लाह. Hare Ram. Ram is ultimate merger, lay, your union, communion with your ultimate need. What is your ultimate need? You realize your ultimate need, every human being, including this one, realizes the ultimate need only when you break. When you break, when your knees touch the ground, then you say, मुझे बचा लो, मुझे शांति चाहिए. So one break is necessary, but it has to be complete break, then eternal existential bliss, ever-present intoxication. So what is that need? That need is मुझे शांति चाहिए. But you keep saying it कि मैं बस किसी दिन मुझे शांति चाहिए होगी, किसी दिन मैं हरिद्वार चले जाऊंगा, किसी दिन सब कुछ छोड़ दूंगा. वो किसी दिन तो कभी नहीं आएगा, वो तो अभी आएगा. Great thinkers, father of psychiatry or psychology, Freud, great philosophers like Maslow, these people don't know what is Vedanta. That is why in this geographic region only, the ultimate wisdom blossoms. Vedanta, end of knowledge. While I am talking to you, it is not that after I have talked to you, you will experience peace. While I am talking to you, you can experience peace. While you are understanding, you can also be beyond understanding. Peace is beyond understanding. Love is beyond understanding. While we are talking, we can be in love. While we are talking, we can be silent. Maslow's pyramid believes that first you will look after you will fend for. कोशिश किस चीज की करोगे? सबसे पहले आदमी किसकी कोशिश करता है? फूड, वाटर, शेल्टर. उसके बाद कोशिश करता है मेरे पास फैमिली होनी चाहिए. उसके बाद कोशिश करता है सोशल रिकग्निशन.
एस्टीम, पावर, रिचेस, उसके बाद कोशिश करते हैं शांति। कभी भी नहीं होगा, इसमें ही उलझे रह जाओगे। दिस इज मास्लोज बिलीफ, एंड वी ऑल टॉक अबाउट मास्लोज पिरामिड. We all talk about id, ego, and superego of Freud. They don't know what is Vedanta. Vedanta tells you, asserts that ये सब कुछ करते हुए क्या आपको शांति नहीं चाहिए? काम करते हुए शांति नहीं चाहिए क्या? कि चाहिए कि मैं अब काम कर लूं फिर मैं घर पे आके आराम करूं? While at work, don't you want peace? While you are working, don't you want peace? While you are fending for food, water, shelter, don't you want peace? Even a beggar wants peace. Everybody wants peace. Peace transcends these needs. Transcends means it's beyond these needs. Not after you have achieved them, you will get peace. Every moment you want peace, don't you? So if you say yes, that means Freud is wrong. That means Maslow is wrong. You need peace all the time. And when you need peace all the time, it's called transcendental meditation. All the time you need to meditate. Meditation is not done while on a holiday. Meditation is all the time an experience of peace. All the time. Now, peace is an esoteric word, means ununderstandable word. Peace means love. Peace means happiness. Peace means satisfaction. Satisfaction with oneself. Don't you want it? You die unsatisfied. Everyone dies unsatisfied. Just too bad. So you require a mentor, a teacher who's an exemplar, who tells you that you can always be at peace, always be satisfied. The world has imposed upon you this very thought, dil mange more. That means you never be satisfied. Why can't you be satisfied all the time? But not as a mendicant with an ochre robe or with a big hair or with some signs of religiosity. I will put a tikka on my face. That is not required. It's a state of mind. It's a state of mind. I just like to wear this in the morning, so I'm wearing it. Not that this makes me religious. A mala makes me religious. No, it's a state of mind that I'm satisfied with life. I'm satisfied with myself. That doesn't mean that I need to leave work and settle down in a Haridwar. It's stupidity. Do you think everybody is satisfied in Haridwar? Nobody is. Not one word, and nobody is. As much a chaos, as much a chaos in Kumbh Mela. Is anybody satisfied in Kumbh Mela? Is anybody sitting in Gurudwara satisfied? It's a state of mind. Thirkar Besu Harijan Pyare. You know, when a mentor tells you, you misinterpret it as blessings. He's actually telling you repeatedly, hands continuing to move, repeatedly telling you, ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर. And ठहर जाओ, if I say it in a religious language, I can say, rahao, rahao, rahao. रुक जाओ, रुक जाओ, रहाओ, रुक जाओ. स्थितौ यत्नो अभ्यासः. किस चीज का अभ्यास करो? स्थिर हो जाने का अभ्यास करो, स्थिर हो जाने, ठहर जाने का. There is no word which is so often repeated. People say that Ram is the most repeated word, most often repeated word in Guru Granth Sahib. Well, I will not debate that.
रहाओ इज द मोस्ट रिपीटेड वर्ड इन श्री गुरु ग्रंथ साहिब। रहाओ, ठहरो, 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 रुक भी जाओ, बस करो। बट दैट डजंट मीन काम नहीं करो। काम नहीं करोगे तो मर जाओगे, फिर तो जिंदगी खत्म हो गई। काम करते रहो और ठहरे रहो। वाइल एट वर्क एक्सपीरियंस पीस। दिस इज ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। प्राणायाम करो, बच्चों की जैसे ही ना रह जाओ सारी उम्र। प्राणायाम इस उंगली से करूं कि इस उंगली से करूं, ये वाली उंगली कहाँ रखूं, कितने लंबे सांस लूं, कितनी देर रोकूं। प्राणों का आयाम बढ़ाओ, विस्तार बढ़ाओ। प्राण, प्राण मीन्स अपनी जिंदगी। जिंदगी नॉट इन इयर्स के 100 साल से मैं 2 साल जीऊं। नहीं नहीं, एट दिस मोमेंट। चढ़ती कला, चढ़ती कला, नाम जपो। चढ़ती कला, कॉन्शियसनेस को रेज करो, कॉन्शियसनेस को रेज करो। आयाम बढ़ाओ, बढ़ाओ, कितना बढ़ाओ, कितना छत तक नहीं, इन्फिनिट करो। इन्फिनिट का मतलब होता है जिसका कोई एंड ना हो। इतना आयाम बढ़ाओ प्राणों का। ये सांसों का नहीं, प्राणों का। प्राण इज दी, सांसों के अंदर जो सांस छुपा हुआ है। जब when you will be in love, जब प्यार तुम्हें हो जाएगा, तुम मेरे जैसे हो जाओगे, तब ये बातें समझ आएंगी। When you will be in love, you'll all the time be exuberant, existential bliss. Existential bliss भी is a esoteric word, ununderstandable. Bliss मतलब नशा है ये। नशा है, नाम चढ़ती कला। खुमारी, नाम खुमारी नानका, चढ़ी तय रहे दिन रात। ये जब खुमारी चढ़ेगी ना, नाम की इंटॉक्सिकेशन, तब पता चलेगा स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। स्पिरिट इज इंटॉक्सिकेशन। वो ग्लास वाली स्पिरिट नहीं, वो तो पॉइजन है। असली स्पिरिट जो आपके अंदर छुपी हुई है, इस टाइम भी छुपी हुई है, अंडरस्टैंडिंग करते हुए भी छुपी हुई है, बातें करते हुए भी छुपी हुई है, चुप रहते हुए भी छुपी हुई है। इट्स जस्ट वेकिंग अप ऑफ दैट इज कॉल्ड कुंडलिनी जागरण। आपका कुंडलिनी जागरण हो जाएगा, सहस्रारा फट जाएगा, और सब तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। आप गुरु नानक नहीं बन जाएंगे। गुरु नानक इज ए हिस्टोरिकल फिगर। आप श्री कृष्णा नहीं बन जाएंगे। कृष्णा इज ए हिस्टोरिकल फिगर। आप हो जाएंगे बस। आप हो जाएंगे। आप कुछ नहीं बन जाएंगे, आप हो जाएंगे। आपको कुछ और नहीं बनना, बस आपको आप होना है। आप कहेंगे बस मेरी बात बनी हुई। केते पवन पानी बैसंतर, केते कान महेश। अब क्या कहें और गुरु नानक। केते पवन पानी बसंतर। आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन्स नहीं रह जाएंगी कि कितनी गैलेक्सीज हैं, कितने सूरज हैं, कौन से मंगल ग्रह हैं, और कितने कृष्णा हैं, कब कृष्णा हुए थे या नहीं हुए थे, कौन शिव जी हैं। ये क्वेश्चंस नहीं रह जाएंगे। केते पवन पानी बसंतर, केते कान महेश, केते बर में काढ़त कड़िए, रूप रंग के वेश। आपको कुछ ना लेना देना होगा कि क्या जिंदगी में और क्या क्या है, क्योंकि आपकी बात बन चुकी होगी। आपको शांति मिल जाएगी। और कुछ चाहिए भी तो नहीं, अपने ही दिल से पूछो क्या चाहिए। गुरुद्वारे से आप क्या सिख बनने के लिए पैदा हुए हो या हिंदू बनने के लिए पैदा हुए हो? नहीं, आप शांति एक्सपीरियंस करने के लिए पैदा हुए हो। ये मेरे को क्या बताने की जरूरत है? क्या आपको नहीं पता? एवरीबडी नोज कि मेरे को शांति चाहिए। मगर यू आर नॉट येट obsessed बाय इट, यू आर नॉट engulfed बाय इट, क्योंकि अभी पूर्णतः शायद टूटे नहीं हो।
दुख दारू सुख रोग पे। हर एक आदमी दुखी है, नानक दुखिया सब संसार। सब संसार, हर आदमी दुखी है, मानता नहीं है। क्योंकि कभी विस्की पी लेता है, कभी टीवी देख लेता है, कभी कोई किताब पढ़ लेता है, कभी किसी दोस्तों को मिलने चले जाता है, अपनी कोशिश करता है कि मैं दुखी ना रहूं। ऐसे नहीं बात बनेगी। आपके अंदर अपनी आनंद को ढूंढना पड़ेगा। उसको भगवान बोलते हैं, उसको स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। शांति ही भगवान है। आपको कोई भगवान नहीं चाहिए। ना तो आपको अल्लाह चाहिए, ना तो कृष्णा चाहिए। अननेसेसरीली अपने कंफ्यूज्ड घूम रहे हैं। आपको कृष्णा से आनंद चाहिए। सो बस ठीक है, आप हिंदू कहलाओ। आपको अल्लाह एक नाम है रख दिया, उससे आपको आनंद चाहिए, शांति चाहिए, सेटिस्फैक्शन चाहिए। ठीक है, उसको अल्लाह बोल लो। अलह है वो। अलह मतलब उसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। बस आपको चाहिए। व्याख्या नहीं की जा सकती, मगर चाहिए आपको। कहाँ तब कब तक भटके भटके ही मर जाओगे? सिख बनते हुए, हिंदू बनते हुए, मुस्लिम बनते हुए। माय गॉड। हरे राम। अपने अंदर शांति चाहिए। बीमारियां भी होती रहेंगी, सिर दर्द भी होंगे, बैक एक्स भी होंगी, पर इन सब के होते हुए आपको शांति चाहिए। आप समझते हो कि बैक एक ठीक हो जाएगी तो शांति लहू मिलूगी? नहीं, शांति अभी भी मिल सकती है, बैक एक के होते हुए भी मिल सकती है। और एक्चुअली इट इज ऑल माइटी मिस्ट्री। हुक्म है ये सृष्टि का। एक हुक्म है। उसने बनाई सृष्टि, ऐसे है, सूरज भी बनाए, चांद भी बनाए, सारे सागर बनाए, हजारों तरह के जानवर बनाए, एक आदमी भी बनाया। और उस आदमी के अंदर ही एक इसेंशियल नीड है कि मुझे सेटिस्फैक्शन चाहिए। फिशेस नहीं कहती कि मुझे शांति चाहिए। शेर नहीं कहता मुझे शांति चाहिए। मगर आदमी चाहता है कि मुझे शांति चाहिए। और कोई चीज नहीं चाहती इस दुनिया में। सूरज नहीं कहता मुझे शांति चाहिए। हर एक आदमी को चाहिए मुझे मेरी बात बन जाए, मेरा दिल लग जाए, बस। और फिर दुनिया कहेगी दिल मांगे मोर, इट विल पुश यू। नहीं नहीं, प्रोग्रेस प्रोग्रेस। शांति प्रोग्रेस के अगेंस्ट नहीं है। शांति इज नॉट टेलिंग यू डोंट बिकम रिच। काम करते रहो अपना, रिच भी होते जाओगे, नेम एंड फेम भी होगा, मगर चाहिए नहीं है। चाहिए तो मुझे शांति ही। नेम फेम होगा, ना चाहते हुए भी होगा, कुछ कर नहीं सकते। काम करते रहो अपना। और करते करते सब काम करते, कोई रिटायरमेंट नहीं चाहिए कभी भी। और सब दुनिया की नॉलेज नहीं चाहिए, असली नॉलेज चाहिए। नॉलेज किस चीज की? मेरी बात बनी हुई है, मेरी बस बात बनी हुई है। ना मुझे कुछ नहीं पता है कृष्णा कौन होते हैं, अल्लाह कौन होते हैं, कहते कान महेश। मेरी बात बनी हुई, बस मेरी बात बनी बनी मेरी जिंदगी के सांस भी कभी खत्म हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम्स। फिर बात ही बन गई तो बस, और क्या फर्क पड़ता। ये सांस मिले ही किस लिए थे? ताकि मेरी बात बन जाए। तो बस बात बन गई। अभी तो सांस कभी भी खत्म हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज द एसेंशियल नीड ऑफ एवरीबॉडी। कोई मृत्यु से डरना लगेगा जब आपकी एक बार बात बन गई तो। हरे राम। कोई आउटर ड्रेसेस हैव नथिंग टू डू विद योर स्पिरिचुअलिटी। कोई श्लोक याद करने की जरूरत नहीं है। काषायंबर बहुकृत वेश पश्यति, पश्यन् अपि च न पश्यति मूढ़ा, उदर निमित्तम बहुकृत वेशा। एक जीने के लिए कोई ना कोई कपड़े तो डालने ही पड़ेंगे। चाहे वो कपड़े हिंदू के दिखें या मुस्लिम के दिखें, या कपड़ों से ही तो फर्क है, और क्या फर्क है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में कपड़े ही तो फर्क है, और क्या फर्क है? स्टेट ऑफ माइंड सबकी बुझी हुई है, नानक दुखिया सब संसार।
दुखम एव सर्वम, दुख ही है सब तरफ। ह्यूमन बीइंग्स में, जानवरों में नहीं। बकरी को आके शेर ने खा जाना है मगर वो दुखी नहीं है, वो अपना घास वास खाती रहती है। मगर उसको कोई जरूरत भी नहीं है शांति की, क्योंकि वो जानवर है। आदमी ही एक पिक्यूलियर क्रिएशन है, जिसको एक नीड है कि मैं, मेरी बात बन जाए, मेरा दिल लग जाए, मेरे को शांति आ जाए, चाहे पैसा हो या ना हो। पर आदमी अभी भटका हुआ है, क्योंकि लोगों ने बोला हुआ है दिल मांगे मोर, अरे सेटिस्फाई मत हो जाना। सेटिस्फाई हो जाओ, और सेटिस्फाई कमरे में मत हो, सेटिस्फाइड रहो और काम वाम करते रहो सब, जो कुछ भी जीने के लिए चाहिए वो करते रहो। अगर कारपेंटर हो तो कारपेंटरी करते रहो, गार्डनर हो तो गार्डनरी करते रहो, काम वाम सब बराबर है। आई मीन इट्स नॉट द नेम एंड फेम विच मेक्स यू अ बेटर और अ बिगर ह्यूमन बीइंग। आई मीन इफ आई हैव गॉट अ बिगर कार, आई डोंट बिकम अ बिगर ह्यूमन बीइंग। इफ आई एम सेटिस्फाइड, बस मेरी बात बनी हुई है। बिग एंड स्मॉल का मतलब ही नहीं, नो कंपैरिजंस नो कॉम्पिटिशंस। मेरी बात बनी हुई है, व्हाट कंपटीशन, व्हाट कंपैरिजन। फिर मुझे कोई बड़ा या छोटा नहीं दिख सकता। बस मुझे पता है सब दुखी हैं बेचारे, सबको चाहिए कि अब बात बन जाए। अगर ढूंढ रहे हैं कोई मंदिर में, कोई गुरुद्वारे में, कोई सिख बन के ढूंढ रहा है, कोई हिंदू बन के ढूंढ रहा है, सब भ्रमित है। चाहते सब दिल से यही है कि हरे राम, कोड वर्ड, हरे राम, वाहिगुरु, 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 वाहिगुरु।